Morning, students. Today we are going to discuss about binomial theorem, and this binomial theorem is divided into three parts. In part one, we are going to discuss 10 points, 10 types, and the part two is binomial coefficient, and part three is binomial theorem for rational index. Okay, so let's start this binomial theorem. Okay. Yes, here I said it to you that binomial theorem, I divided into three parts. See this, Nana? Here, rth term. Okay, we are going to discuss Newton formula and term, rth term from the end also we are going to discuss here. And coefficient of x to the power of s, independent of x, middle term, all the properties, whatever the two different cases are there, we are going to see this. And numerically greatest term we are going to discuss. And rational, irrational terms, number of rational and irrational terms. This is very, very important for means. And divisibility. Divisibility is also one of the best two part of this binomial theorem, but most important point is divisibility related question. Definitely you will get in mains. So multinomial theorem, of course, last three are very, very important. And in miscellaneous example, I'm going to discuss about the questions related to R and F. That I'll tell you clearly while doing the problems. You can understand. And the binomial coefficient, second part. Here I'm going to differentiate, discuss three different types of problems in this using differentiation, using integration, and sum of series whose terms are what to binomial coefficients product. I'm going to say the two different binomial series I'll take and multiply and get it here. And the third one is binomial theorem for rational index. So you are going to find here this type of formulas. You are going to learn this type of formulas. 1 minus x whole to the whole inverse, 1 minus x whole to the power of minus 2, 1 minus x whole to the power of 1 plus x minus 2 here. Like this. Up to 3 if you learn, I think it is more than enough. Okay. And a part of this, you have to learn this one, Nana. 1 minus x whole to the power of p by q. Okay. 1 minus x whole to the power of p by q. This you have to learn. Compulsory. 1 minus x whole to the power of positive p by q and 1 minus x whole to the power of minus p by q. Both plus or minus. In the same fashion, this formula p by q 1 plus x whole to the power of minus p by q. Related to this, whatever we are going to learn are called what? Binomial coefficient. Let's start the first part. Yeah. Everybody has to know this formula, Nana. Of course, Pascal triangle you know very well. X plus y whole naught means here 1 we are getting. X plus y is equal to 1. This is 1, 1. And x plus y expansion. Here the rule you know very well. This is the rule. And x plus y whole cube. So 1, 3, 3, 1. If you draw a triangle, you will get like this now. Adding this, you will get this one. How many number of triangles are possible here? We just see this. 4, 6, 4. Okay, 4, 6, 4. Not here. Always ends are like this. The number of triangles are possible here. That means x plus y whole to the power of 4 expansion it is. 1, 4, 6, 4, 1. So a part of this, you are supposed to learn this one. This you can learn up to 8. I think it is good. Coefficient, binomial coefficient here. So Newton formula, if you learn, that is far better than everything, Nana. Right? This is what fail. If the power is about 1000, you cannot do this. So better here, you can write. See, Nana, NCR, I would like to write CR. Okay, please remember. So actually NC naught x to the power of n, NC1 x to the power of n minus 1 y, and NC2 x to the power of n minus 2 y square. So on. Last one is NCN y to the power of n. How many points you will remember here means these are the core points of this theorem. You are supposed to know. NC naught, NCN is always 1 and NC1 is equal to what? N, and the NCR formula is factorial n by factorial n minus r into factorial r. This is second. Third formula. Fourth formula is NCR is equal to NC n minus r. This is fourth one. And fifth one is NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR you are going to learn. And the sixth one is
NCR by NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 by r you are going to learn. And the seventh one is very, very important. Rth term, this is the formula. NCR x to the power of n minus r y to the power of r. And eighth one is, remember, rth term from the end. Rth term from the end. From the end formula is you write n and r plus 2 you write. This is, if you write like this is what rth term from the end is nothing but n minus r plus 2th term from the beginning. It is. So these are the theory point related to this one. What is the question here given? Third term. See, first I would like to tell you some basic questions. Then afterwards, I'll move on to steadily move on to the PY question. Right? This is third one, he said, T3. Yeah, you can write here T2 plus 1. This is, you see, 4C2, 3x, all to the power of 4 minus 2 minus 5 cubed by 6. You shouldn't have got any kind of doubt at the end of the day. At the end of the class, you shouldn't have any kind of doubt. So if you expand, whatever you want, you got it over here. Right? Shall I move on to the next? Okay. Now you see here, similar example I have taken. The third term from the end. This time what? This is from the beginning. This is from the end. So what I'm doing here, you see this is the formula I'm using here. N means what? 10 here. Okay, third term here. And I'm adding 2. So what I'm going to get here, 12 minus 3. Okay, you are getting what? 9. 9 means what? 8 plus 1. Right. What is that? 10C8. Okay, 10C8. And 10C8 after that, you have to write here, x means 1 here. 1 to the power of 10 minus 8 and x to the power of 8 you have to write. So your answer is 10 to the power of 8 x to the power of 8 is your answer, Anna. I would like to show you that. C0, C1, C2, so on, C6, C7, C8, C9, C10. It is like this. Yeah, you see that third one? This is third one from the end. We got it C10, 10C8. So that formula is perfectly correct. Okay, guys? Okay, we'll move on to the next good questions of this. Fantastic. Now you see here in the binomial expansion, that fellow has given a binomial expansion a minus b whole to the power of n. Of course, n is greater than or equal to 5 as given. Sum of the, what I'm doing here, you see, T5 and T6 is 0 as given. T5 means you can write NC4 a to the power of n minus 4 minus b to the power of 4. 5 means here, 6 means 5 you are supposed to write, no? Right. NC5 a to the power of n minus 5 minus b to the power of 5 is equal to 0. I wrote here fifth term. This is what? Sixth term. Now you tell me here what I can take common. I can take common in this case as this a to the power of n minus 4 and minus b to the power of 4 I can take common. So left out one is NC4, right? And here minus NC5 A inverse and other one is B is equal to 0 is there. These two are not 0, this is 0. So NC4 is equal to NC5, A inverse B is there. So what I can write here, this is B by A by B I'll get it here. NC5 by NC4. NC5 by NC4 means n minus 5 plus 1 divided by 5. Because I use the formula NCR by NCR minus 1, n minus r plus 1 by r I used. Here 4 can be written as 5 minus 1. That's why. So your answer is n minus 4 by, okay, n minus 4 by 5. Okay, guys. Okay, we'll move on to the next question, Nana. Oh, interesting question. Here he said that T0, T1, etc. Tn represent the terms of the binomial expansion x plus a whole to the power of n, and he's asking this value. So very clearly, you see this, Nana, the expansion, if you go for the expansion, we'll come to know that NC0 x to the power of n, NC1 x to the power of n minus 1a, and NC2 x to the power of n minus 2a square, and NC3. I would like to write few terms here, a to the power of 4, so on. The last one is NCn, a to the power of n is there. But you see, second term is minus. That means first, second, not this one. Third term is minus. T2 means this one. Actually, that fellow said that this is T1.
T naught, actually T naught, and this is what T1, and this is what T2, and this is what T3, T3, like that, so on. So you see, for this should be what? Negative. This should be negative means just imagine a square is negative. Square quantity is negative means what we are supposed to do is, very clearly, let me write here. This is the substitution we have to do. Because I square, wherever I square is there, you know very well, I square is nothing but -1. This is a complex numbers, right? It is related to that one. So I square is -1, I cube is I to the power of 4 is 1, like that. This I want to replace so that x plus ai whole to the power of n. Now I can write nc naught x to the power of n as it is, but whereas here I into nc1 x to the power of n minus 1 a, and whereas here -1 into nc2 x to the power of n minus 2 a square, and this is also negative, but it is I nc3 x to the power of n minus 3 a to the power of 3 a to the power of 3, and it is go on so on. I don't want to write here ncn ai to the power of n plus. So what I'm going to do over here, I already indicated T1, T2, T3. So except here, I want to write in this way now. What is that? This is T naught. You see that T naught I have taken, and this is what? Minus T2, yes, and so on. And now I want to take I common, so that this I have to write. That is what? T1 here. Next one is what? This is T3 here, and so on. It will be like this. So for this, what I have to do? Square I want the result is this. So what I'm doing here, applying mod. If I apply mod ai mod o to the power of n, mod I'm applying here, T0 minus T2 plus so on. Yeah, it is like this. I into T1 minus T3, so on. It will be like this. So the mod when you apply here, it will be like this, x square plus a square o to the power of n as usual. And here also the same story, T0 minus T2, so on, whole square it is. And whereas here, T1 minus T3 plus so on, whole square here. Finally, what you got? The required answer, we got it. What is that? See, x square plus a square. Squaring on both sides, Nana. Whole to the power of n is there. And this is T0 minus T2 plus so on, whole square. And plus T1 minus T3 plus so on, whole square. This is, so your answer is x square plus a square all to the power of n is your answer. Okay, in first type I discussed some around 4 problems I discussed, Nana. Let me move on to the next one. One more problem I would like to discuss, this one. In this, then afterwards I'll move on to the second one. Here you see this, Nana, what he has given. These are the 2 binomial expansion is given, and he said he indicated with this one. And he has given one more condition, a1 is equal to a2 is equal to 10, then the value of mn. What I'm doing here, very simple, just I'll keep on, I would like to base on basics are very, very important. What is that? See, 1 minus 5 all to the power of m he has given, 1 plus 5 all to the power of n he has given, a plus a1y and a2y square, so on. भाई देखो इस तरह से है, घबराने की कोई बात नहीं, आपके बेसिक पे आप टिके रहो. Just to expand this, what I want to say, expand this. What is that? MC naught. देख भाई ऐसा आ रहा, MC1 y and here MC2 y square. अब बाकी का लिखने की जरूरत नहीं है यार, उसको तू ऐसा छोड़ दे. You need not write anything, just leave it. And now second one, that is what? NC naught plus NC1 y and here also NC2 y square in the same fashion I wrote. And whereas here you see this, Nana, 1 plus a1y plus a2y square, so on. Chalega. What I want to do here, coefficient of y I would like to take first. Okay, coefficient of y. When you multiply these two, see this, Nana, this and this one you have to multiply. Second one. That is what? MC naught NC1. Yeah, this and this one you can multiply. MC1 and with minus r, and here NC naught it is, and that fellow has given that is equal to A1 he has given. So what I'll get here, n,
this is what m, and this is what 10. One equation we got it. Now coefficient of y square I'll take. Coefficient of y square means I may get like this, Nana. MC naught, NC2, right? And next one is MC1, NC1, because y means y square here. Another one, this into this one. What is that? MC2, NC naught. Yeah. 3 terms we are getting. That is equal to what? A2. So you see this, Nana. N into n minus 1 divided by 2 you are getting. This is m, n. Here m into m minus 1 by 2 you are getting here. This is what? 10. So overall n square minus n 2mn plus m square minus m is equal to 20 you are getting. See guys, I want to take this. What is that, Nana? M square, this m minus or n minus. What it? Nothing will happen here. You can write in this way. N minus m whole square, a square plus b square minus 2ab, and next one is n plus m is there. This is 20. Already we got it from 1. This is what 100 will get, n plus m, and now you see this 20 name. So m plus n is equal to what you will get? 80. Second equation. And first equation what we got? M, okay, n minus m. What, Nana? N minus m is there. Okay. Minus m plus n is equal to 10 is there. When you add this to 2n is equal to 19, Nana. N is equal to 45. So m is equal to what? 80 minus 45. This is what? 35. So your answer is 35 comma 45 is your answer. Okay. This is the first part, type 1 is completed. Okay. Here in type 2, we are going to find the coefficient of x to the power of s. Here I'm taking 8 and this one. See, learning the formula is not enough. What I want to say that if you learn some formulas and feeling that, yeah, binomial theorem, I got it, means no. Okay. How many different types of problems are given till now in mains? You have to go for it. So this is one of this. One of the formula, no problem. If the formula is like this, p and b by x to the power of q whole to the power of n is there, you want to find coefficient of x to the power of s. So r value directly you can find by using this formula. S by p plus q you can write. Right. This is the formula, Nana. Right. Directly you can find r value. What is that? R is equal to np, 9 into 2, minus 8 divided by 2 plus 3. So r is equal to how much here? 18 minus root 10 by 5. This is 2. So here 2 plus 1, I'm writing here like this, 9c2. देख ले भाई, 9c2 ऐसा लिख दिया यार. 3x square whole to the power of 9 minus 2 and 5 by x cube whole square ऐसा लिख दिया. तेरे को चाहिए कोएफिशिएंट यार. कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 80 आएगा. सिंप्लीफाई करे तो 9c2, 3 to the power of 7 and 5 square. सिंप्लीफाई कर ले यार, ये तो बन जाएगा. So this is not enough. What I want to say that if you learn this one saying that I got the command in coefficient of s, no. No, certainly not. You take the second example, you will come to know the reality. देख भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ले लिया यार. क्या पूछ रहा है देखो यहाँ पे. कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 5 बोल रहा. But it is not in that form. Whatever the formula you have learned, that formula you cannot apply here. देख लो, अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं. तो फिर क्या करना? इसको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा. So we are supposed to deal in a different manner. What is that? See this, Nana. You know very well that binomial coefficient आपको पता होना चाहिए. 1, 5, 10, 10, 5, 1. And in the same way, 1, 4, 6, 4, 1. For this and for this. Yeah, I'm writing here. You see, 1, x square रहेगा. 5, x square whole square हो जाएगा. 10, x square whole to the power of 3 हो जाएगा. और 10, x square whole to the power of 4 हो जाएगा. And next x to the power of x square whole to the power of 5 हो जाएगा. और नेक्स्ट इसका देख भाई, 1 प्लस, राइट, तो पहले तो 1 होगा इसका. एक मिनट, यहाँ पे देख भाई, पहले NC नॉट का तो पहले तो 1 हो जाएगा. उसके बाद में थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई शायद यार.
ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो चलेगा, कुछ नहीं होता है यार, ऐसा तो होता रहता है। 1 5, तो यहाँ पे देखो 10 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और 10 x² होल टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, और हियर 5 x² होल टू द पावर ऑफ 4 एंड x² होल टू द पावर ऑफ 5, ऐसा रहेगा। यहाँ पे देख भाई, 4x, नेक्स्ट 6 x², नेक्स्ट 4 x³ एंड द लास्ट वन है x² कुछ भी नहीं यार, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ऐसा याद करे तो ऐसा जल्दी जल्दी लिख सकते, नहीं बोले तो ऐसा लिख ले 5c0, 5c1, 5c2, 5c2 का मतलब क्या है, 10 है यार, इसमें कोई झंझट नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं आप। अब देखो यार, अपने को क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² चाहिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² के लिए देख भाई, ये स्क्वायर है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये दो टर्म मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे को x² मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे देख x² होल स्क्वायर है, ये दो मल्टीप्लाई कर ले, पता चल जाएगा तेरे को, मिल जाएगा। देख भाई, ये दो मल्टीप्लाई करा तो तेरे को एक ही टर्म आ रहा, व्हाट इज दैट, 5 × 4, और ये दो टर्म जब मल्टीप्लाई कर रहा 4 × 10 हो जाएगा, बस इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा। अदर देन दिस यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, दिस इज 20, दिस इज व्हाट 40, ओवरऑल आंसर इज व्हाट 60। Okay, this is what second time. In type 2, second model I did it. Right. And I want to take some more example, which is what not helpful. That formula we cannot use. Right. देख भाई, अगर से क्वेश्चन ऐसा दिया, सपोज द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, हाउ टू डू दिस, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता भाई, वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, एक्सपेंशन की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है, देख भाई, x⁴ in, if you simplify 1 + x whole to the power of 2n you will get, and x⁴ you have। यार ये बात याद रखो आप लोग, डिनोमिनेटर में अगर से जो है वो पावर सेम एज इट इज न्यूमरेटर में ऐड कर देना है। x⁴ है, देख यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे ऐड कर ले भाई, ऐसा लिख ले, इन 1 + x होल टू द पावर ऑफ 2n हो जाएगा। मतलब क्या होगा यार, x⁴ इन 1 + x होल टू द पावर ऑफ 2n हो जाएगा। वो टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही आएगा, 2nc नॉट ही होगा, यही आंसर है। क्या आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि आप लोग को थोड़ा बहुत और एक क्लैरिटी के लिए ये एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते। देख भाई, x⁴ है समझ, ओके, ऐसा लिया, होल टू द पावर ऑफ 10 लिया, 1 + 1/x होल टू द पावर ऑफ 10 लिया, समझने के लिए, आपको अच्छी तरह समझने के लिए, और एक एग्जाम्पल सेम ऐसे लिया, तो क्या होगा यार, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ है 1 + x होल टू द पावर ऑफ, ये तो 10 ही रहेगा ना, 10 × 2 20 होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, x⁴ आएगा। मैंने कहा कि यार ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर ले, देख भाई, तो क्या होगा, 6 + 10 हो जाएगा ना, इन किस में, 1 + x होल टू द पावर ऑफ 20 हो जाएगा। अब तो तेरे को पता चल गया, TR+1 लिखेगा ना तू, 20 CR, ओके, 1 टू द पावर ऑफ 20 - r x⁴ यार तेरे को चाहिए क्या, x⁴ चाहिए, तो r की वैल्यू क्या होगी, 16 हो जाएगी, तो तेरा कोएफिशिएंट क्या होगा, 20c 16 हो जाएगा। बात तो समझ में आ गया। चल, अगर से सर वहां पे माइनस लिए थे आपने, यहाँ पे तो प्लस ले लिया आपने, ये कैसी बात हुई, कुछ भी डरने की बात नहीं है यार। देख, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ ले, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देख ले यार, ये 1 + 1/x होल टू द पावर ऑफ 10 लगा ले, समझने के लिए बता रहा हूँ भाई, कुछ नहीं, तेरे को सताना नहीं है मेरे को, तो समझने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, 1 + x होल टू द पावर ऑफ, ये 20 x⁴ होगा, यहाँ जब ऐड करेगा ना तो बनता क्या है भाई, बनता तेरे को 4 है। देख, -6 + 10 4 होगा ना, इन 1 + x होल टू द पावर ऑफ 20, तो तेरा आंसर क्या होगा, इसको देख के बोल दे सकता, 20c 4 होगा। सो मेरे ख्याल से इसमें तेरे को, आई थिंक यू पीपल गॉट क्लियर आइडिया अबाउट दिस। ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट ना, राइट। यार और एक मॉडल है, वी हैव अनदर मॉडल इन दिस वन, इन टाइप 2 आई एम डिस्कसिंग, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ दिया, जब ऐसा दे दिया यार तो करेगा क्या, x⁴ चाहिए, बट इट इज सिग्मा रोटेशन। सी, फॉर्मूला तो अलग था, चार डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किया है इसमें, तो गौर से देख लीजिए भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इफ यू एक्सपैंड, नहीं समझ में आ रहा, बेसिक्स पे टिके रहो, व्हाट टू डू हियर, हर प्रॉब्लम को नया फॉर्मूला के लिए नहीं ढूंढना है,
you just stick on to the basics and just substitute here. What you will get? Let us see. 100 C naught देख भाई x minus 3 whole to the power of 100 minus 0 to the power of 0. अब देख भाई 100 C1 x minus 3 whole to the power of 100 minus 1 and 2 to the power of 1. चलते रहेगा कहाँ तक भाई? 100 C 100 x minus 3 whole to the power of देख 100 minus 100 and 2 to the power of 100 तक गया। यार इसको देखे तो समझ में आ रहा तेरे को। क्या है ये? बायनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन दिया। न्यूटन फार्मूला के मुताबिक इसको क्या लिख सकते हैं? x minus 3 plus 2 whole to the power of 100। बात तो बन गई। या इसी को ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, 53 चाहिए इन किसमें? x minus 1 whole to the power of 100। चल भाई इसको tr plus 1 लिख, बेहतर है। 100 cr x to the power of 100 minus r and minus 1 to the power of r। चल यार इसको देख, x to the power of 100 minus r को x to the power of 53 से कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई इक्वेट कर, वही चाहिए ना अपने को। सो r is equal to 47 आ रहा। सो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 53 इज क्या होगा? 100 c 47, अब माइनस 1 to the power of 47, मतलब माइनस 100 c 47। यार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 100 c 100 minus 47, 100 minus 47 क्या होगा? 53 ऐसा। Okay, this is the coefficient. Coefficient relatedly, I discussed 4 different types. Type 2 different type of problems I discussed. 4 different types of problems I discussed. 4 different type of problems discuss कराया। अभी देखो इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ x जाएंगे। यस यार देखो x टू पावर ऑफ 0 लेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस x टू पावर ऑफ 0 इन सेम फार्मूला है, वही फार्मूला दे रहा था मैं जो आपने देखे थे बस में। कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर ऑफ n लिखते वक्त r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? np बाई p प्लस q हो जाए। डरने की कोई बात नहीं है, बस ये फार्मूला यूज करके पहले ये सॉल्व करेंगे और कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहेंगे इसमें वो भी देखेंगे यार। तो बनता क्या है भाई? r पहले यार 20 p 1/2 हो गया। यहाँ पे देख 1/2 प्लस 1/3 वो नीचे आ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। 20/2 डिवाइडेड बाई 5/6 हो जाएगा। ओके 20/5 6/2। चलिए यार कैंसिल कर ले। यहाँ बनता क्या है देख, 10 है, ये तो 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या होगा तेरा? कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर ऑफ 0 इंडिपेंडेंट ऑफ 0 x मींस x टू पावर ऑफ 0 व्हाट इज दैट? 20c 12 2x to the power of 1/2 whole to the power of 20 minus 12 minus 3x to the power of 1/3 whole to the power of 12। यार कोएफिशिएंट ही चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 0, तो 20c 12 and 2 to the power of 8 and minus 3 to the power of 12। अरे यार माइनस नहीं लिखे तो भी चलेगा, ये हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसे के क्वेश्चन देता? सर्टेनली नॉट। थोड़ा बहुत देखिए यार, हियर व्हाट इज द क्वेश्चन इज गिवन, इफ द एब्सोल्यूट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बोला। कोई घबराने की जरूरत नहीं है यार। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही है बस। तो आर की वैल्यू तेरे को चाहिए 10 इंटू 1/2। चल ये 1/2 प्लस 2 रहने दे। 10/2 यहाँ पे क्या होगा देख 5/2, मतलब 2 हो रहा, मतलब 2 हो रहा ना भाई। चल यहाँ पे लिख दे तो यार आर इज इक्वल टू 2 है, उन्हें दे दिया। सो 10c2 रूट एक्स टू द पावर ऑफ 10 माइनस 2 और माइनस के बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 2, ये है अपना। ओके टी 2 प्लस 1 का ये है, इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है। व्हाट इज दैट? 10c2 है बस, माइनस के होल स्क्वायर है इज इक्वल टू सम अराउंड 405 आएगा। ठीक है 10c2 मीन्स 10 इंटू 9 1 इंटू 2, ये तो के स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे कितना होगा? 405 होगा यार। के स्क्वायर इज इक्वल टू 405 बाई, देख भाई यहाँ पे देख तेरे को 45 आएगा। सिंप्लीफाई कर ले, यही आंसर है तेरा। इस तरह का एक क्वेश्चन होगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। या यहाँ पे देखो यार क्वेश्चन ऐसा दिया, जब ऐसे क्वेश्चन दे रहा तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अपन, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा लॉजिक यूज करो भाई। एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्या होगा देख, 3x² बाई 2 प्लस 1/3x है होल टू पावर ऑफ 9 है। इसमें तेरे को क्या करना है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो यार यहाँ पे पता चल रहा कि मेरे को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आने के लिए यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पे एक्स इसमें इसमें सो ईयर 1 भी है आप
So we are supposed to get x to the power of 0 coefficient. And the next one is here x to the power of -1, क्योंकि ये x है तो उसके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x to the power of 0 हो जाएगा। और एक क्या चाहिए, x to the power of -3 चाहिए यार, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो हो जाएगा। मतलब तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 फाइंड आउट करना है। होगा नहीं, देखेंगे चल। 3x²/2 + 1/3x होल टू द पावर ऑफ 9 है। अभी देख यार कोएफिशिएंट ऑफ, अब इसमें जनरल टर्म लिख ले रहा हूँ यार, झंझट ही चले जाएगी, मैं फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा। 9c0 3x²/2 होल टू द पावर ऑफ 9 - r एंड 1/3x होल टू द पावर ऑफ r। तो बनता क्या है भाई, 9c r है यार, 9c r 3/2 होल टू द पावर ऑफ 9 - r 1/3 होल टू द पावर ऑफ r है, x टू पावर ऑफ 18 - 2r और ये -r। चलेगा चलेगा चलेगा। अभी देख भाई, अपने को चाहिए 3 चाहिए ना, x टू पावर ऑफ 18 - 3r को पहले क्या चाहिए, 0 चाहिए। सो यार 3r इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू 6, ये तो आ गया। अब 18 - 3r इज इक्वल टू -1 चाहिए, ये क्या होगा, 19 इज इक्वल टू 3r, ये इंटीजर नहीं होता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल यार। अब देख भाई 18 - 3r इज इक्वल टू, तेरे को चाहिए क्या, -3, ये तो 21 हो जाएगा 3r। तो r इज इक्वल टू 7, यानी कि 2 टर्म आ रहे जहां पे इसके कोएफिशिएंट तो लिखना पड़ेगा। क्या है देखे यहाँ पे 1 है, पहले तो 1 है, 1 लिख ले। और इसमें ये x0 का है, मतलब 9c r6 है, r6 है, हाँ 6। और इसमें क्या लिख रहा तू, क्या लिख रहा, 3/2 होल टू द पावर ऑफ 9 - 6 एंड 1/3 होल टू द पावर ऑफ 6, एक हो गया। और यहाँ पे देख भाई, ये तो 0 है, ये तो नहीं है, यहाँ पे 2 है, चल यार 2 लिख ले पहले। और यहाँ पे 7 का है, 9c7 3/2 होल टू द पावर ऑफ 9 - 7 एंड 1/3 होल टू द पावर ऑफ 7। ये होगा तेरा इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। फॉर्मूला के रिलेटेड है नहीं, थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा भाई, ऐसा हो जाएगा। ओके चलो यार, अभी एक नेक्स्ट मॉडल को चले, नेक्स्ट टाइप को चले जाएंगे। यार मिडिल टर्म के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स अच्छी तरह से देखो। x प्लस से ओल्ड पावर ऑफ n है, यहाँ पे क्या होगा, दो केसेस आएंगे, n इज ऑड रहेगा, n इज इवन रहेगा। n ऑड है, कितने कितने मिडिल टर्म्स आएंगे, n इवन है, कितने मिडिल टर्म्स आएंगे, ये सब देखेंगे अब। अगर से n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे। we are going to what, 2 middle terms, what is that, n plus 1/2th term and n plus 3/2th term, these are 2 middle terms यहाँ होंगे। अब यहाँ पे देख भाई, अगर से n इवन है क्या होगा, n/2 + 1th टर्म इज अ मिडिल टर्म, एक ही मिडिल टर्म आएगा, राइट। इसके लिए कुछ झंझट की जरूरत नहीं है यार। अगर से 1 + x होल टू द पावर ऑफ 4 लेगा तू, तो 1 4 6 4 1 आएगा। देख यार यहाँ से कट करते जा, तेरे को कितने बार है, एक मिडिल टर्म है, एक ही है ना, वो 5 लेगा तो 2 हो गए। इस तरह से बात तो बन जाएगी, ठीक है। अभी देख, इसमें और एक पॉइंट सीखना जरूरी है आप लोग, क्या है, ये जब दिया टर्म टी n + 1/2th टर्म बोला, तो इसका कोएफिशिएंट होगा क्या इस एक्सपेंशन में, तो कोएफिशिएंट होगा क्या, कैसे लिखना है इसको, देख यार n-1, देख मैं क्या लिख रहा हूँ, n-1 2 + 1 ऐसा लिखना पड़ेगा, nc n-1/2 ऐसा आएगा, x टू पावर ऑफ n-1/2 ये होगा, एंड a टू पावर ऑफ n-1/2, तेरा कोएफिशिएंट यही होगा, ये पूरा मिला तो कोएफिशिएंट होगा। अगर से चल मैं इसमें 1 + x अगर से मैं ले लिया तो बात ही और कुछ और इजी हो जाएगा आप लोगों को, मेरे ख्याल से 1 + x मैं ले लिया तो ये एक ही झंझट नहीं रहती भाई, इसलिए आपको यहाँ से निकाल देना, दिस इज द कोएफिशिएंट, राइट, दिस इज द कोएफिशिएंट, राइट। अब ऐसी t n+3/2 में लिखता क्या है भाई, n+1/2 + 1, तो यार nc n+1/2, तो these two are the binomial coefficient x to the power of n plus 1/2 ऐसा लिखना पड़ेगा, these are the two binomial coefficient हो जाएंगे। और वही सेकंड फंडा है, n इवन रहे तो क्या हो रहा है, तो यार n इवन रहे तो बहुत सिंपल सी बात है, n/2 + 1 होगा ना, तो यार nc n/2 x to the power of n-n/2, तो फॉर्मूला nc n/2 होगा। अगर ये मैं लिखने का रीजन क्या है, इफ somebody ask you that what are the
ग्रेटेस्ट बायनॉमियल कोएफिशिएंट अगर से कोई पूछ लिया ग्रेटेस्ट बायनॉमियल कोएफिशिएंट कहाँ मिलेगा, तो मिडिल टर्म में यार. दीज आर ग्रेटेस्ट बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स. ग्रेटेस्ट बायनॉमियल कोएफिशिएंट अकर इन मिडिल टर्म. याद रखो यार प्लीज. यार देखो ऐसा दिया टर्म. ओके व्हाट इज दैट एग्जैक्टली वी कैन राइट. एक्चुअली द गिवन स्ट्रक्चर. ध्यान दो यार एक गिवन स्ट्रक्चर पे. ये कैसा है भाई, यहाँ पे माइनस है. सॉरी दिस इज माइनस. तब क्या होगा, 1 - x होल क्यूब यहाँ होगा और होल टू द पावर ऑफ 2n है. बनता क्या है भाई, 1 - x होल टू द पावर ऑफ 6n. इवन है. n तो नेचुरल नंबर ले ले यार. तो क्या होगा, इवन है. इवन है तो क्या होता, 6n/2 + 1 द टर्म इज मिडिल टर्म. मतलब 3n + 1 द टर्म. ऐसा है. 3n + 1 the term is middle term means 3n + 1 the middle term means you can write 6n c 3n, right? And 1 to the power of 6n minus 3n and minus 1 to the power of 3n you can write. So x रहता है यहाँ पे, x to the power of 3n रहता है, और जरूरत नहीं. Coefficient if you want you can write here 6n c 3n and minus 1 you can write. This is the answer. Okay, we'll move on to the next one, Nana. देख भाई उन्हें बोल रहा कि मिडिल टर्म. देख क्या बोल रहा, मिडिल टर्म. मिडिल टर्म इन बोला 1 + α x⁴. इसका मिडिल टर्म दो में. ये मिडिल टर्म, ये तो यार इवन है. तो बनता क्या है, 4/2 + 1 इसमें होगा. मतलब बहुत क्लियर है. थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है देख, 6/2 + 1 मतलब सेम है. फोर्थ टर्म तो यहाँ पे होगा क्या, 4c2. 4c2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. और इसमें देख ले भाई 63 माइनस अल्फा टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा. तो अब बनता क्या है, सिंप्लीफाई कर ले. तो यहाँ पे तेरे को अल्फा की वैल्यू देख भाई, कैंसिल करने के बाद माइनस में आ जाएगी. और कितना होगा, सम 3/10 हो रहा. राइट. सो मिडिल टर्म के बारे में 2-3 प्रॉब्लम ही, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिया है, जरूरत भी नहीं है. जिसकी जरूरत है वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. फिर अगर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन है एनजीटी. यार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए पहले तो इस तरह से बनाना पड़ेगा. वट एवर ही हैज गिवन यू कैन राइट, यू कैन कन्वर्ट इनटू 1 + x होल टू द पावर ऑफ n. n क्या होगा यार, पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर है. अब यहाँ पे एक फार्मूला है. क्या फार्मूला है, देख भाई इस तरह से लिखना है तुझे. n+1 mod x लिख लेना है डिवाइडेड बाय mod x प्लस. अब यार उन्हें कुछ वैल्यूज देता है x के. इफ यू सब्स्टिट्यूट दोस ऑल वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई, लेट अस से यू गॉट इट p. इंटीजर आ गया, समझ. इंटीजर है. देन क्या होता, tp t p+1 r r what ngts. टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. लेकिन बात पते की एक है यार, मॉडुलस ऑफ दिस इज सेम. दोनों का भी ये सेम रहेगा. एक फॉर्मूला. अगर से देख यार n+1 mod x डिवाइडेड बाय mod x, ये x है भाई, +1 इज इक्वल टू सम p + f आया, समझ. p इंटीजर है भाई, इंटीजर. राइट. f क्या है यार, एक फ्रैक्शन है, लाइज बिटवीन 0 and 1 है. तब क्या होगा, देन याद रख ले tn+1 मतलब p+1. p+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा. ओके, tp+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा. ये एक बात. इसके बारे में एक जानकारी थी, ये लिख दिया. और एक जानकारी है यार, वो भी लिख रहा हूँ, पेपर टर्न कर. यस यार. तो 2 पॉइंट्स क्या आते हैं बोले तो, ये वो 2 पॉइंट है यार. व्हाट आर द 2 पॉइंट्स में दिस इन द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन. अगर से कोई पूछ लिया the greatest coefficient, then what is the condition means, this is the condition. वैसे अगर से 2 to the power of n-1 है, समझ. I mean sorry 1 + x होल टू द पावर ऑफ n-1 है. Greatest coefficient has also what, like this, lies in between this one, the x lies between this one.
चलो यार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखेंगे क्या क्या दिक्कतें आते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है अपने को। यू सी दिस ना सोल्यूशन इसका देखो, क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे। उन्हें दिया कि क्वेश्चन 3 + 2x होल टू द पावर ऑफ 49। याद रख भाई, ये फार्मूला जो है गोयडास कोएफिशिएंट का फार्मूला, ये फॉर्म में रहे तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन क्या करना पड़ेगा यार, टू टेक 3 to the power of 49 कॉमन, 1 + 2x/3 होल टू द पावर ऑफ 49 आ जाएगा। तो अब ये ले ले, 1 + 2x/3 होल टू द पावर ऑफ 49 ले ले। अब चले आप फॉर्मूला अप्लाई कर, 49 + 1 मॉड 2x/3। देख फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2x/3 मॉड, यहाँ पे +1 है। यार ये 50 है, 2/3 है, तो उसकी x की वैल्यू 1/5 दिया उन्हें, 1/5 दे दिया। तो मॉड ऐसा लिख ले, तो यहाँ पे देख 2/3 1/5 +1 होगा। तो यार इसको सब सिंप्लीफाई करेगा, तेरे को बनता क्या है भाई, 100/15 होगा। देख यार यहाँ पे 17/15 होगा। तो मतलब तेरा बहुत क्लियर है, ये तो तेरे को इंटीजर नहीं है, इसका तेरे को सम वैल्यू सारा, ओके, सम वैल्यू सारा, कितना वैल्यू है क्या वैल्यू है तेरा देख ले भाई। अभी जब सब्स्टिट्यूट करा, सिंप्लीफाई करा, तो मेरे को इसका वैल्यू कितना आ रहा, देखो 5 पॉइंट समथिंग चिल्लर रहा। तो मेरे ख्याल से 5 पॉइंट समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, सिंप्लीफाई करे तो 5 पॉइंट चिल्लर आता, राइट। तो बनता क्या है भाई, सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म इज एनजीटी ना हो रहा, सिक्स्थ टर्म इज एनजीटी। अब ये सिक्स्थ टर्म की वैल्यू क्या है, ये 5 पॉइंट समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 5 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं इसको, राइट। सो 5 पॉइंट चिल्लर आता, इसलिए सिक्स्थ टर्म बोल के बोल दिया। सिक्स्थ टर्म तेरे को लिखना है, उसकी वैल्यू लिखना है, तो कैसे लिखेगा, 3 to the power of 49 पहले लिखना है इसमें, इसमें चाहिए ना, इसमें नहीं, लिख के इसमें सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म कितना हो रहा 49C5, राइट। हाँ 1 to the power of 49 - 5 और 2/3, उसकी वैल्यू डाल दे एक्स की, वो कितना दिया 1/5 कुछ दिया, होल टू द पावर ऑफ, ये लिख दिया 5। ये होगा तेरा आंसर। What is the value of NGT means this is what, which term means NGT means this is sixth term is NGT. Yeah, like this we have to do. अगर यार देख, यहाँ पे 3x - 2y होल टू द पावर ऑफ 12 है, करना क्या है भाई, 1 - x फॉर्म में लिखना है पहले, 2x को कॉमन निकाल ले, ऐसा हो जाएगा 3y/2x होल टू द पावर ऑफ 12 हो जाएगा। चल यार यहाँ पे ले ले 1 - 3y/2x होल टू द पावर ऑफ 12 ले ले। अब फॉर्मूला में अप्लाई कर, अप्लाई करा तो क्या होगा, 12 + 1 हो जाएगा, मॉड -3 रहेगा, 2y/x रहेगा। यहाँ पे भी देख ले, मॉड -3/2 y/x +1 होगा। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है अपने को, तो वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा, 13, ये 3/2, y की वैल्यू देख 5/2 है, x क्या है 1 है, यानी कि 5/2 लिखना पड़ेगा तुझे, ठीक है। चल भाई 3/2, ये 5/2, तो मॉड है यार, माइनस का तो छोड़, ऐसा होगा। यहाँ पे देख 13 × 15/4 आएगा, बनता क्या है यहाँ 15, हाँ 15 + 4/4 हो जाएगा, कट कर दे, राइट। सो हमारा कितना भाई, 15 × 15 डिवाइडेड बाई 19 है, ओके 19 है। तो मेरे ख्याल से देख यार, ये 13 में तो 169, 169 बोले तो कुछ कम 10 पॉइंट चिल्लर में जा रहा, ओके 10 पॉइंट समथिंग आ रहा, समथिंग आई डोंट नो एग्जैक्टली 10 पॉइंट। सो दैट मीन्स व्हाट यू कैन से 11th टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, उन्हें खाली विच टर्म बोल के बोला, तो अपन लिखना क्या है 11th टर्म, बस इतना ही। वो वैल्यू क्या है बोले तो अलग से उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। ओके गाइस, okay guys, I find one new question in this one. If the fourth term is in the expansion, this has a maximum numerical value, तब करना क्या पड़ेगा, फोर्थ टर्म बोल रहा है यार, मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंपेयर फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, राइट। फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, कैसे कंपेयर करना पड़ेगा,
देख भाई, T4 अगर से T4 से तू कंपेयर कर रहा, T4 और T3 कंपेयर कर रहा, मॉड में लगा दिया, तो एक तो ऐसा होगा और एक ऐसा भी होगा। T4 और T5 भी लगाएगा तो बनता क्या है भाई, ये भी मेरे ख्याल से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि T4 इज ग्रेटर देन T3 बोल रहा, ग्रेटेस्ट रिटर्न T4 ही है ना, तो इसलिए दो केसेस बन जाएंगे। अब T4 है तो इसमें लिख ले यार, क्या होगा, 10C3 टू पावर ऑफ 10 - 3, 3x/8 होल टू पावर ऑफ 3, ये फर्स्ट वाले को लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देख भाई 10C 2 टू पावर ऑफ 10 - 2, 3x/8 होल टू पावर ऑफ 2, ऐसा आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, ये तो बनता है। क्या लिखना है जरा देख ले यहाँ पे, 10 - 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। देख यार, ये 8 है, ये 7 है, तो 1/2 नीचे रहेगा, और ये कट करे तो क्या रहेगा यार, 3x/8 रहेगा। मॉड में लगा दे और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख ले पहले वाले को, तो ये 3 तो गया। यहाँ बनता क्या है देख ले भाई, 11, 8 तो गया, बचा क्या, x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से क्या होगा, -∞ टू -2 यूनियन 2 to ∞ आएगा, ये 1 है। तो यार यहाँ पे और एक भी है, वो भी लिख दे, 10C3 टू पावर ऑफ 10 - 3, फोर्थ टर्म है ना, और 3x/8 होल टू पावर ऑफ 3 है। अब यहाँ पे देख, थोड़ा बड़ा होगा, 10C4 होगा, टू पावर ऑफ 10 - 4 होगा, यहाँ पे 3x/8 होल टू पावर ऑफ, ये होगा 4 होगा तेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। चल यार, इसको पूरा उल्टा घुमा देंगे, नहीं तो ऐसे ही रख, चलेगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, ये इसका इधर का फंडा है, मॉड है, तो बनता क्या है भाई, तो देख यार, इसको 10 - 4 प्लस 1/4 हो जाएगा, और ये कट करे तो 7 है, ये 6 है, ये 1/2 होगा इधर भी, क्योंकि अपन उधर घुमा दे रहे। यहाँ पे भी क्या रहेगा, 3x/8 रहेगा, लेकिन ये <<1 होगा, ये मॉड में है। चल अभी क्या बनता है देख लेंगे यहाँ पे, ये देख 11 - 7, यानी कि 21x हो जाएगा, ये 64 हो रहा, राइट, मॉड, ये <<1 है, तो x बिलोंग्स टू क्या है, -64/21 टू 64/21 आ रहा, ये क्लोज है। तो जब इसको दोनों को मिलाएगा, 1 × 2 करेगा, तो तेरे को -64/21 से -2 तक आएगा, और यूनियन, अभी यहाँ पे क्या होगा देख, 2 to 64/21 तक आएगा, ये है तेरा आंसर। ओके, होप सो दैट इट इज क्लियर। Yes. Now you see this, Nana. This type 5 is over. Now we'll move on to the next type 6. Here, there is a chance to ask this. Here afterwards, you have to be careful. थोड़ा बहुत careful रहना चाहिए यार. ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछते रहता हूँ. The number of integral terms. यार रेशनल इंटीग्रल ऐसे के वर्ड्स यूज करते रहता, तो आपको एक ही रहेगा, झंझट में नहीं आना है। तो इंटीग्रल टर्म्स पूछ रहा, एक्सपेंशन से कैसा करना है। देखो यार, उन्हें जो दिया वो एक्सपांशन में ले रहा हूँ, √3 8 √5 होल टू द पावर ऑफ कितना दिया, 256 दिया। भाई तू जनरल टर्म लिख ले, TR+1 लिख, क्या करेगा, TR+1 लिख, 256 CR, और √3 टू द पावर ऑफ 256 - R। मैं तो ऐसे ही करूंगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। इसका फॉर्मूला भी है, मैं फॉर्मूला से नहीं बताता हूँ। यहाँ पे देखो यार, जनरल मेथड से कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, एंड 5 to the power of R/8 हो जाएगा। मतलब तू करना क्या है, तू ऐसे R के वैल्यूज फाइंड आउट करना है। यू आर व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, यू आर सपोज टू सर्च फॉर सच R वैल्यूज वेयर दीज मस्ट बी इंटीजर्स। कब होगा, R = 0 ले ले यार, ये देख R/8 क्या होगा, इंटीजर होगा, 0 है। यार 256/2 ये भी इंटीजर होगा। अब तो टू टू के बाद तो टू लेगा, तो यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स लेंगे,
ए इंटीजर होगा, ए भी इंटीजर होगा, और उसके बाद क्या करेंगे 16, दो भी इंटीजर होगा। ऐसे ही चलेंगे, आर टू द पावर ऑफ 256 तक जा, दो भी हो जाएगा यार। मतलब बहुत क्लियर है, 0, 8, 16, यहाँ 256 कितने टर्म्स है, 256 लास्ट वाला है ना, nth टर्म हो जाएगा 0 प्लस n-1 इंटू डी, डी का डिफरेंस देख भाई, एट एपी फॉर्मूला यूज करा यार, Tn+1 इज इक्वल टू r+1 NCR x to power of n-r, वो नहीं, एपी का फॉर्मूला यूज करा, Tn का, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी का ये फॉर्मूला यूज करा था, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 256 है, n-1 इंटू 8 है, 8 से कट कर दे भाई, n-1 इज इक्वल टू 32 होता, n इज इक्वल टू कितना, 33। हाउ मेनी रेशनल टर्म इंटीजर टर्म्स आर दे, नंबर ऑफ, देख भाई, नंबर ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल टर्म्स कितने हो गए, 33 हो गए। चलिए यार, और एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो भाई, एथ रूट ऑफ 5 प्लस सिक्स रूट ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ 100 दिया। इसमें देख भाई, TR+1 ही लिख रहा हूँ, मतलब 100 CR, एथ रूट ऑफ 5 होल टू द पावर ऑफ 100 माइनस R एंड सिक्स रूट ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ R। यार यहाँ लिखना क्या है, देख मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, 100 माइनस R/8 एंड 2 टू द पावर ऑफ R/6 है। चलिए यार, यहाँ पे देख R इज इक्वल टू 0 बन रहा क्या, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये 8 से जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं हो रहा, 6 वो भी नहीं हो रहा, 12 देखेंगे, पता नहीं, देखेंगे 12 से, देखेंगे 12 चलेगा। यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे 12 निकाल दिए तो कितने होगा, 88, यस ये जा रहा, एक टर्म आया आपने। अब R इज इक्वल टू देख क्या, 12 के बाद 18 लगा दे, तो 18 अगर से मैं लगाया तो ये नहीं हो रहा, ये हो रहा। अब 18 के बाद देख 24 भी देखा, डबल करेंगे 24 देखेंगे, 24 अगर से मैं लगाया तो बनता क्या है भाई, 24 बनता है, ये तो बन रहा 6 है ना, बन रहा। इसमें 24 निकाल दे तो मेरे को क्या रहता, 76 रहता, ये नहीं बन रहा, 30 नहीं हो रहा। अब 36 देखेंगे, हाँ 36 देखेंगे, ये से जा रहा, 6 6 36, 36 में 64, यस ये भी जा रहा। बस अब आ गया, आ रहा क्या है भाई, 12 हो गया है, 36 आ गया, इनके दोनों का डिफरेंस है 24 है। चल यार, यहाँ पे 24 ऐड करते, 36 प्लस 24 मतलब तेरा 60 होगा, उसके बाद 84 हो जाएगा, है ना, 4 और ज्यादा ऐड करेगा, 100 से ऊपर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ, देखना है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स है ये, कितने हैं रेशनल टर्म्स, कितने आ रहे, 4 आ रहे, लेकिन पूछा क्या, नंबर ऑफ इरेशनल पूछा, इरेशनल टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू रेशनल माइनस रेशनल टर्म्स, माइनस है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए भाई, 101, वो निकाल दो यार, 97 इरेशनल टर्म्स ऐसा होगा, राइट। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, है ना। यार ये भी याद रखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन ऑफ, कभी ऐसा दे दिया तो याद रखो, इवन है तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स रहते, ऑड है n+2/2 टर्म रहेगा। ये नहीं तो ये फर्स्ट वाला है, अगर से माइनस दे दिया बीच में, या प्लस है या माइनस रहेगा, माइनस है तो ये ऐसा होगा। एक एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर से मैंने बोल दिया 2+3x होल टू पावर ऑफ 10 है, यहाँ पे 2-3x होल टू पावर ऑफ 10 है, ये क्या हो गया देख, n इवन है, सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनते भाई, इवन है ना। चल यार 10+2/2 कितने टर्म्स रहते हैं यार, 6 टर्म्स, 6 टर्म्स, टोटली 6 टर्म्स पहले। अगर से वैसे दिया 2x-1 होल टू पावर ऑफ 11 -2 -3x होल टू पावर ऑफ 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे भाई, तो माइनस अगर से है, यहाँ पे मैं चेंज करा, यहाँ पे ऑड नंबर भी है, ये एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ले लिया, तो ये ऑड नंबर है तो 11+1/2, यहाँ पे भी 6 होगा, राइट, यहाँ पे भी क्या होगा, 6 नंबर्स होंगे, 6 नंबर ऑफ टर्म्स अपने को आते, ये भी अगर से वैसे रख लिया। In multinomial theorem, we have three most important point. What is that? The number of term is one.
and the general term how you are going to find coefficient. I'm going to say that coefficient how to you are find that this is more important, guys. Sum of the powers should be got equal to n, then only it is possible. I'll give you example. You'll come to know that clarity. And the greatest coefficient, this is also one of the example is there. So here, how many number of terms are there? Suppose m terms are there. You divide n by m. So you will get what coefficient and remainder. Those two, by using those two, we can write like this manner. That is the greatest coefficient we get. So, okay, telling like this, you may catch, may not be, but here I'll give examples here. Now you see this one, examples. Yeah, you see this one, number of terms in this one. What is the formula? 10. How many are there? Plus 3, minus 1, C, 3 minus 1. So how much? 13 minus 1, 12, C2. 12 C2 means 12 into 11 divided by 1 into 2. How many terms are there? 66 terms are there. Suppose I'll go for the next one, Nana. See. Okay, now you see this one here. How much? 5 is there. 5 plus 4 minus 1, C, 4 minus 1. So 9, 8, C, 3 here. So 8 into 7 into 6 by 1, 2, 3. So 8, 7, 56 terms are there. So number of terms, finding number of terms, easiest formula is what? N plus R minus 1, CR minus 1. This is the formula you have to remember. Now we'll move on to the next one, Nana, in this one. Okay, what is that? Find the coefficient of this, you see. C, Nana, 4 plus 3 plus 2, kitna ho raha bhai? 9 ho raha. Is there? Yes, A, B, C, D, R, A, B, C, D. D is 0 here. Right, if it is like this, yeah, you can take in this way, nothing will happen. So what is going to happen now? 9 factorial, according to this one. I'm going to write here A, that is what 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial, okay, 0 factorial. And here coefficient is 1, 1 to the power of 4, minus 1 to the power of 3, and 1 to the power of 2, and minus 1 to the power of 0. So your answer is what, Nana? Minus 9 factorial by 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial is your answer. Like this, we are going to find here coefficient. I'll give one more example. Yes, you see this, Nana? Of course, here terms are ABC, but here he has given like this. So what to do? Very simple. 6 factorial. How many are there? 3 are there, na? So let us say that P factorial, Q factorial, R factorial. 3 है ना? 3 लिया. कैसे लेंगे यार? BC to the power of P, CA to the power of Q, and AB to the power of R. ऐसा लिखना पड़ेगा. This is, हाँ, अभी क्या होगा? देख यार यहाँ पे A to the power of क्या है? Q plus R है. B to the power of क्या है? P plus R है. C to the power of क्या है? P plus Q है. तो उन्हें दिया ना, उसको इक्वेट कर देंगे. तो देख भाई, Q प्लस आर इज इक्वल टू कितना होगा तेरा? 3 होगा. और P प्लस आर कितना होगा तेरा? 4 होगा. एंड P प्लस क्यू कितना होगा तेरा? 5 ने दिया ना, उसे इक्वेट कर दिया. इतने दोनों को ऐड कर ले. 2 प्लस P प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा. राइट, ये पूरा ऐड कर भाई, कितना? 9, 12 हो रहा. मतलब P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 6 हो गया. तो यार यहाँ पे देख, इसको 1 बोल दे, 2, 3, ये 4 ले. तो यार देख, 1 एंड 4 जब लेगा तू, तेरे को जो आएगा P आएगा, वो कितना होगा? 3 होगा. और 2 एंड 4 जब लेगा तू, तेरे को आएगा Q, वो कितना होगा? 2 होगा. एंड 3 एंड 4 जब लेगा, तो तेरे को R आएगा, वो 1 होगा. सो आंसर तो बहुत सिंपल सी बात बन गई. रिक्वायर्ड, व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड इज, देख भाई, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल. BC लिख ले भाई, तू कुछ भी लिख ले यार. यहाँ पे BC जो है वो लिख दे. P का वैल्यू कितना है वो डाल दे, 3 आ जाएगा. CA है, वो कितना होगा? Q2 होगा. और AB है, वो कितना होगा? इसका R है, 1. तो मतलब तेरा आंसर 6 फैक्टोरियल बाई P फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ऐसा. इज दैट क्लियर? तू ऐसा नहीं कर सकता भाई, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. यहाँ पे देख, ABCD है, यहाँ पे भी ABCD दिया उन्हें, तो इसलिए अपन ऐसा करें. यहाँ पे नहीं दिया तो अपन चेंज करना पड़ेगा, ऐसा लिख के ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा. कभी कभार क्या करता, पूरा एक्स में देता,
वैसे ही क्वेश्चन भी देखेंगे, एक आध क्वेश्चन। चलो यस भाई, देख ले इधर क्या होगा। देख यार, इसमें लिख लिया 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं तीन टर्म है ना, पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल लिखा, टू टू पावर ऑफ पी लिखा, माइनस एक्स टू द पावर ऑफ क्यू लिखा, एंड 3x² होल टू द पावर ऑफ आर लिख दिया। ये समेशन। ठीक है, चल क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। टू आर फैक्टोरियल, टू टू पावर ऑफ पी है, -1 टू पावर ऑफ क्यू है, 3 टू पावर ऑफ आर है, एक्स टू पावर ऑफ क्यू प्लस 2r है। यार ये क्यू प्लस 2r तेरे को कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब तेरे को यहाँ पे वैल्यूज देख ले, पी क्यू आर के वैल्यू देख। आर अगर से 0 है तो क्यू कितना होगा यार, 5 होगा। टोटल तेरा कितना होना चाहिए, पी प्लस क्यू प्लस आर शुड बी इक्वल टू 6 होना चाहिए ना। हाँ तो देख यहाँ पे P1 हो जाएगा। आर इज इक्वल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर आर की वैल्यू, 1 सब्स्टिट्यूट कर, तो क्यू कितना होगा, 3 होगा। ये तो 4 हो गया तो ये 2 होगा। चल आर इज इक्वल टू अभी क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, 2 सब्स्टिट्यूट कर 4, 2 क्या होगा, 1 होगा, ये 3 होगा। चल आर इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6 होगा। आर इज क्यू इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल। अब बस ये टर्म्स खत्म, यहाँ तक आ गया। मतलब कैसे लिखना है इसको, लिखना क्या है भाई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, टू टू पावर ऑफ 1, -1 टू द पावर ऑफ 5, एंड 3 टू पावर ऑफ 0, एक हो गया। हाँ चल नेक्स्ट। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देख, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, टू टू पावर ऑफ 2, -1 टू पावर ऑफ 3, 3 टू पावर ऑफ 1, ये हो गया। और एक है, वो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, टू टू पावर ऑफ 3, -1 टू पावर ऑफ 1, एंड टू टू पावर ऑफ 3, ऐसा आएगा। तो यार ये पूरा सिंप्लीफाई कर ले, जो भी आएगा तेरा आंसर वही मेरे ख्याल से तेरा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर देख, सिंप्लीफाई करने के बाद यार, -505029 कुछ है, ऑप्शन देख के बोल रहा हूँ, 5052 कुछ ऐसा आ जाएगा। राइट, सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा। ये एक और एक मेथड था, एक और एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम था, और एक लास्ट प्रॉब्लम है इसमें, वो करेंगे यार। भाई यहाँ पे देख, द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ बोला, तो करना क्या है भाई, यन तेरा क्या होगा, यन तेरा होगा 11। तेरा यम बोला तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देख, यम होगा 4। चल यार इसको डिवाइड करेंगे, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 2 ज़ा 8 होगा, ये 3 होगा। तेरा मतलब ये क्यू तेरा है, ये आर तेरा है। यस फैंटास्टिक। तो ये फॉर्मूला जो है वो लिख देंगे, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, फॉर्मूला देख भाई क्या रहेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्यू ना, क्यू फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ m माइनस आर इंटू क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल और टू द पावर ऑफ, मेरे ख्याल से आर ही होगा, हाँ सही है। तो देख भाई n फैक्टोरियल वो क्या होगा, 11 फैक्टोरियल, क्यू कितना है भाई 2, 2 फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ 4 माइनस आर, 4 - 3 है। और देख भाई 2 + 1 फैक्टोरियल होल टू द पावर ऑफ आर, ये हो गया तेरा 3। तो बनता क्या है, 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल क्यूब, ये तेरा आंसर होगा। यार इसमें एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन इसमें। देख भाई, फाइंड द सम ऑफ रेशनल टर्म्स। डरने की कोई बात नहीं है इसमें, वी नीड नॉट वरी अबाउट दिस। 10 फैक्टोरियल लिख दे, 3 टर्म्स है, तो पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल लिख दे। और देख √2 टू द पावर ऑफ पी है, 3 टू पावर ऑफ 1/3 होल टू द पावर ऑफ क्यू है, 5 टू पावर ऑफ 1/6 होल टू द पावर ऑफ आर है। पता चल रहा है कि अपने को, देख भाई ये आना चाहिए, क्या है वो, p/2 है, 2/3 है, r/6 है, मस्ट बी इंटीजर है ना, क्या रहना यार, मस्ट बी, ये क्या रहना, अन इंटीजर, ये इंटीजर होना। ये इंटीजर होना है बोले तो कौन से टर्म आएंगे अपने को, लेकिन यहाँ पे एक फंडा है, p+q+r इज इक्वल टू 10 ही होना, इससे ज़्यादा नहीं होना। तो अभी मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख यार, p की वैल्यू देख, मैं 4 ले रहा हूँ, एंड q मैं ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, तो ये 10 हो गया, तो r मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना, एक हो गया, एक तो बन गया एक। और देख यार नेक्स्ट वाला, p4 ले रहा हूँ, ओके, r 0 ले लेता हूँ, नहीं q 0 ले लेता हूँ, ये तो चले गया। अब बचा क्या, r 6 हो जाएगा। और एक है, अब मैं p10 ले लेता हूँ यार,
ये जाएगा 2 से जाएगा। अब Q एंड R दोनों भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब अब मेरे को ये तीन ही फंडे आ रहे, तीन ही टर्म्स आ रहे। वो तीन टर्म्स मैं कैसे लिख रहा हूँ जरा देख ले भाई। 10 फैक्टोरियल भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ओके, ये क्या है, 2 to the power of 4 बोले तो 2 हो जाएगा। एंड 3 to the power of ये भी होगा, 2 होगा। वो तो 0 है, लिखना बेकार है। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होगा। देखिए यहाँ पे क्या, 2 to the power of 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 आएगा, 5 to the power of 6 है बोले तो 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट वन, लास्ट वन, 10 फैक्टोरियल बाई लास्ट वन 10 फैक्टोरियल है। और 2 to the power of 5 हो जाएगा। अब बाकी का कुछ नहीं रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यार। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ ऑप्शन में है, मैं पूरा सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ। फिर उसके ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, जो भी ऑप्शन में आएगा वो आंसर आप यहाँ पे लिख लो। प्रॉब्ली मेरे ख्याल से इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 फैक्टोरियल, ये 10 10 तो गया, 1 हो गया, 2 to the power of 32 आ रहा। ये 32 है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई। ये हो गया। सो मल्टीनॉमियल थ्योरम इज टोटली कंप्लीट। यार कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा भी दे देता, तो अपन डरना नहीं है। ये मल्टीनॉमियल का नहीं, बाइनॉमियल कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो। sometime if he is giving the problem like this guys, you need not worry. What you are supposed to do is, this is second term, this is first term, you take down 10c naught, and here 10c1, 2x plus 3x square आएगा एक बार। और एक बार 10c2, 2x plus 3x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और सो ऑन ऐसा आएगा। अब उन्हें पूछा A2 चाहिए तुझे, ठीक है। A1 क्या है, ए नॉट है, ए नॉट तो ऐसे पड़ेगा, ये 10c नॉट रहेगा। अब यहाँ पे देख भाई, 10c1 में तो 10 होगा, ये 2x है, ये 3x स्क्वायर है, रहने दे। ये 10c2 बोले तो 10 × 9 डिवाइडेड बाई 1 × 2, 45 होगा, ऐसा ना। 10 × 9 डिवाइडेड बाई 1 × 2, देख यार ये 5 45 होगा। 45 इंटू यहाँ पे देख 4x स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, 9x⁴ प्लस 12x³ ऐसा आएगा, प्लस 1 ऐसे ही चलते रहेगा। अब इसमें तेरे को क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है A1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है तेरा A1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तेरा A2 है। A1 देख भाई यहाँ पे, ये कितना होगा, 20 होगा, ये 20 है खाली। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख यहाँ पे तेरे को 30 आ रहा, और यहाँ पे देख 45 × 4 90, 180 आ रहा, 90 ना। तो 45 का तो × 4 है, बस, और बाकी का नहीं आएगा। तो तेरे को A2/A1 बोला, मतलब 210/20 है, सो दैट 21/2 तेरा आंसर होगा। 10.5 कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा। ऐसे के प्रॉब्लम भी रहेंगे, कभी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक आध प्रॉब्लम और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, जरा देख ले भाई। यार ये क्वेश्चन है, अरे ये मैं सॉल्व कर दिया, ठीक है चलो एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा लिया, होल्ड टू द पावर ऑफ 10, इसको मैं क्या करा, एक्स को 1/x से रिप्लेस करा, क्योंकि यहाँ पे A2 पे माइनस है, देख भाई, ठीक है। A1 है, A2 पे माइनस है क्वेश्चन में, तो A2 पे जब माइनस आ रहा, ओके, A2 पे माइनस आ रहा, तो इसलिए मैं क्या करा, एक्स रिप्लेस बाय 1/x करा, करके सिंप्लीफाई करा। देखिए यहाँ पे ऐसा आ रहा, A1 पे आ रहा, सॉरी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, राइट, क्वेश्चन में माइनस है, -A1² है, ऑल्टरनेट माइनस है यहाँ, A0² A1² है, इसलिए ऐसा करा। करने के बाद देख भाई, मल्टीप्लाई कर लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए दोनों में, मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ x⁴n आ रहा। तो ऊपर में जब मल्टीप्लाई करा, x⁴x² है ना, तो 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे देख क्या होगा, यहाँ पे 0 है ना, x⁴0 है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोले तो x⁴0, उसको ऐड कर लिया, 2n होगा। x² टर्म, nth टर्म इसमें क्या होगा, an हो जाएगा। तो ऐसा है यार। चलो इसको मल्टीनॉमियल पे यहाँ पे रोकेंगे, डिविजिबिलिटी पे जाएंगे यार। ओके, डिविजिबिलिटी में देख भाई, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड रिमाइंडर का एक देगा क्वेश्चन ऐसा,
यानी कि 7 to the power of 103 है। इसको क्या करेंगे, 7 स्क्वायर 51 लिख देंगे, बराबर हो जाएगी। यानी कि 7, ये यार याद एक 50 - 1 होल टू द पावर ऑफ 51 लिख दे, तो इसको मैं एक्सपांड कर दे रहा हूँ। 7 है, चल भाई, ये देख 51 C0 माइनस 51 C1 50, बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 51 C 50, यहाँ पे 50 आएगा, ये देख 50 है, 51 C 50, और उसके बाद लास्ट में 51 C 51 आएगा, और कुछ नहीं रहेगा, वो माइनस रहता है। तो होता क्या है, देख यहाँ पे 10 तो मिल रहा, ये 10 मिल रहा भाई, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 1 है, राइट। ये 50 टू द पावर ऑफ यहाँ पे 50 रहेगा, 50 टू द पावर ऑफ 50, यहाँ पे 50 टू द पावर ऑफ 51 रहेगा। ओके, नाउ इट इज क्लियर। तो यार देख हर एक टर्म में है 51 C0 और 50 टू द पावर ऑफ 51 है, ये 51 C1 50 टू द पावर ऑफ 50 है, चलते रहेगा, 51 C 50 है, लास्ट में क्या होगा, 1 होगा ना, तो 7, इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो इसको क्या करेंगे, पक्का -3 ऐड करेंगे, +3 करेंगे, तो यहाँ होता क्या है, 7 तो लगा दी भाई, तो ये अंदर ले ले, ये समथिंग 51 C0 50 टू द पावर ऑफ 51, ये 5 से डिवाइड होते जाएगा, और यहाँ पे देख 51 C 50 भी रहेगा, ये 10 रहेगा ना, तो यहाँ पे देख ये 10 है, ये क्या होगा, 3 है, मतलब ये पूरा तरफ 5 से डिवाइड होगा, बचा क्या, रिमाइंडर 3, सो रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज 3, ऐसा हो जाएगा। विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन नाना। देख भाई 2 टू द पावर ऑफ 2003 है, ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे, 2 टू द पावर ऑफ 2000 लिखेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 8, एंड टू द पावर ऑफ 4 भी 500 लिख देते, बराबर हो गया है, 8 हो गया, यहाँ पे कितना है देख, 17 से डिवाइड करना है ना, तो 16 हो रहा है, यानी कि 17 - 1 होल टू द पावर ऑफ 500 लिख देते, बात तो बन गई। सो 8 इंटू, भाई यहाँ पे देख ले क्या हो रहा है, 500 C0 70 टू द पावर ऑफ 500 होगा, ये 500 C1 70 टू द पावर ऑफ 499 होगा, चलते रहेगा कहाँ तक, 500 C 499, यहाँ पे भी 17 रहेगा, लास्ट वन 500 C 500, यहाँ तक आएगा, यस, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे होगा, तो मतलब क्या है, 8 है, ये तो 17 से तो यहाँ तक तो डिविजिबल है, ये तो यहाँ तक 17 तक डिविजिबल है, अब यहाँ बच रहा क्या है यार, तेरे को 1 बच रहा है, देखिए आप, समथिंग 17 × M है, बचा तो क्या बच रहा, 1 है, 8 है, तो अब उन्हें बोल रहा कि 2003/17 पूछ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 8 आएगा, ओके 17 से, सो इसमें बच रहा क्या, 8/17 बच रहा, दिस इज द आंसर, कितना होगा, फ्रैक्शन पर इंटीजर का तो इसको 0 हो जाएगा ना, तो यार 8/17 होगा यहाँ पे आंसर। अरे यार, चल सॉल्व कर दिया, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या कर सकते हैं भाई, देख यार मैं पहले दो लिया, दो ले लिया, तो रिमाइंडर थ्योरम x⁴n y⁴n मीन्स x - a लिख सकते हैं ना, तो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, वैसे ही ये दोनों को लेकर माइनस कॉमन निकाला, तो ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा, तो भाई पावर सब सेम रहने की वजह से मैं क्या करा, नेक्स्ट वन आई आई टेकन लाइक दिस, 25 - 8 लिया, उसके बाद क्या करा, 20 - 3 भी लिया, दो भी लिया, ये 17 से डिविजिबल हो रहा, मतलब बहुत सिंपल है यार, ये तो नंबर जो दिया उन्हें वो नंबर डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 17 है, तो करेगा क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 85, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 85। तो डिविजिबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन देंगे भाई, वो जरा ध्यान से सॉल्व करते वक्त थोड़ा बहुत टाइम लगा के आप सॉल्व करने की कोशिश करो। यस, इन binomial coefficient you see Nana, this is the expansion, 1 + x whole to the power of n is given,
So in this expansion, if you substitute 1, we'll get this formula. If you substitute -1, you'll get what? This formula. Okay, remember. And afterwards, if you differentiate this one, what I'm saying here, differentiate this one and substitute x is equal to 1, you'll get this formula. Differentiate and substitute x is equal to -1, you'll get like this. We can. Okay, because you remember one thing, when we have to differentiate means in the denominator, in multiplication of binomial coefficient is now any number is there, then you can think about the differentiation. That's you remember. क्या यार binomial coefficients का कोई coefficients अगर से 2 3 4 कुछ तो ऐसा, यानी कि मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ यार. By taking one example I will explain. Just see this. Yes. ऐसा दिया है यार. तो यार इसको सॉल्व करने का तरीका देखो. क्या दिया यहाँ पे, नंबर कोएफिशिएंट देख लो यहाँ पे. यार तू यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 डाल देगा तो -2 आएगा, तो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा 0 से, यहाँ पे तो 1 है. तो क्या है, इनका डिफरेंस कितना है? 4 - 1 3 है. चलो 3 का डिफरेंस निकाल लो. क्या रहता? -2 आएगा. -2 C0 1 C1 देख भाई, 4 C2 7 C3 राइट, चलते जाएगा 3n - 2 Cn. मैंने यहाँ पे a ऐड करा तो यहाँ पे +2 लिखना पड़ेगा मुझे. C1 के पास C2 C3 रहेगा ना, तब जाके इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n. यहाँ पे क्या होगा देख, ये तो बन गया 3n - 2 PR - 2 CR. तो इसको कैसे लिखेगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n r CR. एक होगा सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n CR होगा. यार यहाँ पे फार्मूला है तेरे पास, यूज कर ले, हो जाएगा, बात बन जाएगी. देख भाई यार n टू द पावर ऑफ n - 1 होगा, यहाँ 2 टू द पावर ऑफ n हो जाएगा. तो कॉमन कितना निकालेगा भाई, टू द पावर ऑफ n - 1 निकाल दे यार, तो बनता क्या है 3n. ओके, -4 हो जाएगा. दिस इज योर आंसर गाइस. ये गलती हो गई अपने से, यहाँ तक ही ले लिया अपन, इसको कॉन्सेंट्रेट करें. +2 ऐसे ही रहेगा ना, जमते रहेगा, +2 जमा के रहेगा ऐसा. ये आप करेक्ट होगा. चलिए यार करेक्ट हो गया. चलो और एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे. यस, यार इन्हें कंफ्यूज करने के लिए पूरी कोशिश करेगा आपने. he definitely want to confuse you by giving this type of questions. You see the difference of these two is what, and a 7 - 3 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 है नहीं है. तो अपन ऐड करते हो थोड़ा ध्यान से देखना. और C2 C3 से चल रहा है यार, C1 गायब है, वो भी देख लेना है आपने. तो क्या करेगा, उन्हें ऐसा दिया आपने को कंफ्यूज करने के लिए. Right, he has given here to make you confuse. Here is not, it is easy, but he has given some changes, you have to catch those all. यार देख 3 में से अगर से मैं निकाल दिया तो -1 होगा. ये C1 ऐड करना पड़ेगा मुझे, 3 C2 अब बराबर हो गया, C3 हो गया. ये देख यार 4n - 5, चल यार Cn होगा. अगर से n 0 -5 होना चाहिए, तो मेरे को ये भी ऐड करना पड़ेगा. -5 C0 लिखा, ऑलरेडी वहाँ C0 है, तो तू -5 करा, -C1 करा, तो यहाँ पे +1 C1 लिखना है, ये तो पहले करा. और इसके बाद यहाँ पे देख तेरे को कितना होगा, 6 C0 लिखना है, ये तू ऐड करा यहाँ पे सब करा. तब जाके तू लिख सकता भाई सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n 4r - 5 CR प्लस यहाँ पे देख जो है वो लिख ले 1 C1 प्लस 6 C0. चल अभी क्या होगा देख लेंगे. इसको देख 4 सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n r CR -5 सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n CR 1 C1 प्लस 6 C0. तो बनता है भाई 4, ये 2 to the power of n इंटू 2 to the power of n - 1 5 है, 2 to the power of n प्लस 1 C1 प्लस 6 C0, ये बन गया. अब इसको देखेंगे. Okay, here you see this Nana. If he has given this type of question, what I am doing here, these are what's half terms are there. That's why what I am doing here, I want to multiply and divide with 2. अब मल्टीप्लाई करने के बाद देख भाई 20 C0 20 C1 20 C2, तो चलते रहेगा भाई. 20 C3 माइनस रहेगा, लास्ट में क्या है 20 C10 है. एक बार लिखा, और एक बार भी लिखना पड़ेगा. वन मोर टाइम यू हैव टू राइट बिकॉज आई मल्टीप्लाई 2.
Okay, 20C2, so on. 20C10 is there. So after this one, what I can do here, the first one is as usual, no change at all. 20C2 or 20C3 भी लिख सकता था plus 20C10, but I want to change this one. 20C20 हो जाएगा, ये प्लस है, minus 20C19 हो जाएगा. Because I use this formula, NCR is equal to NC n minus R, 19. Okay, 19 is there, and plus 20C18 is there, minus 1. 20C11 आता है इससे पहले, ये माइनस होगा, और एक बार आ रहा 20C10 आ रहा. मतलब बहुत सिंपल है यार, देख 1 by this you can write as from here to this all can be written as what? Sigma R is equal to 0 to 20 minus 1 to the power of R CR if you write, and last one is 20C10. ये क्या होगा भाई, 0 है, 1/2. So the answer is 1/2. 20C10 is your answer. This type of question is also there. Please tell them. If any model, if any other model. Okay, यहाँ पे देखो यार, 1 plus x whole to the power of n expansion है, C0, C1x, C2x square, C3x cube, ऐसा है, Cn x to the power of n. अब इसको क्या करेगा, क्या करेगा यार, इसको करना क्या है, डिफरेंशिएट कर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो होता क्या है, एन इंटू 1 plus x होल टू पावर ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा. तो आता क्या है, C1 हो जाएगा. अब देख भाई, 2 इंटू C2x रहेगा, 3 इंटू C3x² रहेगा. तो यार एन इंटू CN x टू पावर एन माइनस वन रहेगा. फिर एक बार डिफरेंशिएट कर, तो एन है, एन माइनस वन होगा, 1 plus x होल टू द पावर ऑफ एन माइनस टू होगा, ये तो 0 हो जाएगा. यहाँ पे देख, 1 इंटू 2 C2 होगा, 2 इंटू 3 C3x होगा. ऐसे ही रहेगा, एन इंटू एन माइनस वन CN x टू पावर ऑफ एन माइनस टू रहेगी. अब तू करना क्या है, x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे, बस इसका आंसर आ जाएगा. तेरे को आंसर कितना होगा, एन इंटू एन माइनस वन, 1 सब्स्टिट्यूट करा, 2 टू पावर ऑफ एन माइनस टू हो जाएगा. ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करे, आंसर ऐसा आ गया. यस यार, क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मतलब क्या है भाई, NC1/NC1 - 1, 2 इंटू NC2/NC2 - 1, 3 इंटू NC3/NC3 - 1, सो ऑन, n है, NCN/NCN - 1. सो फॉर्मूला यूज करो यार, n-1 + 1/1, तो 2 इंटू n-2 + 1/2, 3 इंटू n-3 + 1/3, चलते जाएगा, प्लस 1 n इंटू n-n + 1/n होगा क्या, n में ये 2 गया, n-1 है, यहाँ पे देख n-2 आएगी, ऐसे जाते जा 1 आ जाएगा, मतलब n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज योर आंसर. यार यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का, to solve this question, remember guys, I want to take 81 to the power of n common. The left out one is 2nc1 10 रहता, 2nc2 10 square रहता, like that, 2nc2n 10 to the power of 2n. Yeah, I can write this as very simple, 81 to the power of n. Okay, this can be written as 1 minus 10 whole to the power of 2n. Yes. So 1/81 to the power of n minus 9 to the power of 2n. Nothing wrong. 1 is the answer we are getting here. While I will move on to the next one. Something little difference here. R is equal to 0 to n is there. What I am doing here, NCR x to the power of R y to the power of n minus r है. रहने दे भाई. Sigma R is equal to n. R is, yeah, I want to write here n into
एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हैं यार। एक्स टू पावर ऑफ एन माइनस ओके, एक्स टू पावर ऑफ आर है, एक्स टू पावर ऑफ एन आर माइनस वन, अच्छा आर माइनस वन इंटू एक्स लिख लेते हैं, वाई टू पावर ऑफ एन माइनस आर चल गया, ये तो गया। अब एन है, बाहर निकाल देते, एक्स को भी बाहर निकाल देते, सिग्मा एक कट कर दिया तो आर इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है एन तक। देख भाई यहाँ पे क्या रहेगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन चलेगा, एक्स टू पावर ऑफ आर माइनस वन वाई टू पावर ऑफ एन माइनस वन आर माइनस वन लिख सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई होल टू द पावर ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा। तो उन्हें दिया वन, तो आंसर क्या होगा तेरा, एन एक्स हो जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूला एक्स, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आपको याद करना है, सी नॉट सी आर, ये इसको आर इज इक्वल टू जीरो डाल दो, ये आ जाएगा। ये कैसा आएगा बोले तो, वन प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन एक्सपेंशन लिखो, एक्स प्लस वन होल टू द पावर ऑफ एन एक्सपेंशन, दोनों भी लिखो। लिख के क्या करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर ऑफ एन माइनस आर ऊपर से नीचे आने तो एक्स टू पावर ऑफ एन प्लस आर का कंपेयर करो तो ये आ जाएगा। राइट, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सिंपली हो जाएगा यार। ये भी फॉर्मूला एक अच्छी तरह से याद रख लो, बस है काम आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो यार, ये वन प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन है ना, वो एक्सपांशन दो है, सी सी वन एक्स प्लस ओ वन प्लस सी एन एक्स पावर ऑफ एन है। इसको आप लोग क्या इंटीग्रेशन करो जीरो टू एक्स के बीच में, डेफिनेट इंटीग्रल याद है ना, जीरो टू एक्स के बीच में इसको इंटीग्रेशन करो, एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आने के बाद क्या करो यार, अगर से आप इसको एन इज इक्वल टू वन आर इज इक्वल टू एक्स आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट करोगे, तो एक फॉर्मूला, एक ऐसा प्रॉब्लम का आंसर अपने को आ जाएगा, सी एन एन प्लस वन हो जाएगा, टू टू पावर ऑफ एन प्लस वन माइनस वन बाई एन प्लस वन होगी। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अगर से सब्स्टिट्यूट करोगे, सी नॉट माइनस सी वन बाई टू सी टू बाई थ्री सो ऑन, सी एन बाई एन प्लस वन आएगा, माइनस वन टू पावर ऑफ एन रहेगा। ये यार वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होगा, ये फर्स्ट वन होगा, ये सेकंड वन होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो और एक आंसर आएगा आपको, जो आंसर होगा सी नॉट प्लस सी टू बाई थ्री प्लस सो वन। ठीक है यार, ये जब तू ऐड करना, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, टू रहता ना तो टू उधर डिवाइड करेगा, टू टू पावर ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन हो जाएगा। अगर से तू सब्ट्रैक्ट कर रहा वन माइनस टू, एक और एक आ जाएगा, क्या होगा यार, सी वन बाई टू आएगा, सब्ट्रैक्शन करें, और प्लस सी थ्री बाई फोर आएगा, ऐसा आएगा, सब्ट्रैक्शन है तो वो टू इधर ला लिया, टू टू पावर ऑफ एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, माइनस वन भी है, या माइनस एन प्लस वन भी है। देखिए यार, टू ऊपर से आता है क्या कॉमन, तो टू टू पावर ऑफ एन माइनस वन बाई एन प्लस वन ऐसा होगा। राइट, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे करें ऐसे कि आ जाएगा। अब इसको जैसा भी है दो दो बार करना है तो ये फॉर्मूला लेना, दो दो फैक्टर्स है समझ, यहाँ पे कर सकते हो। राइट, सो बायनॉमियल कोएफिशिएंट में ज़्यादातर देखा गया यहाँ तक अपन करें। अब नेक्स्ट क्लास में इसका एक असाइनमेंट दूंगा 30 का, रेशनल इंडेक्स नहीं बताया हमें, तो रेशनल इंडेक्स एक 10 मिनट्स बता के उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको उसका असाइनमेंट एंड और एक एग्जामिनेशन पेपर आपको दे देना। असाइनमेंट में 30 क्वेश्चंस, अच्छे पीवाईक्यूज लेके डिस्कस, और इसके बाद में आपको बाकी का सब कुछ मिल जाएगा। बायनॉमियल कोएफिशिएंट में यहाँ तक बस कर दिया, ठीक है भाई। Right, I want to tell you that how we integrated this. Suppose if I take this question, what is the result of this one means? Here I have taken a formula, this expansion 1 plus x whole to the power of n expansion. I applied here definite integral 0 to x dx here, right? Here also I integrated this and I substitute, okay, and substituted the values 0 to x. I got it this. Once again I integrated between, because 2 is repeated, you see 2 cube etc. to the power of n plus 2 is there na? That's why I have taken 0 to 2. Second time I integrated. How? Because here this many number of time. How many number of time you have to integrate? Here two terms are there in the denominator, then integration. If it is in multiplication, you have to go for differentiation. Please remember. When to use the differentiation means, if 1 into 2 c1 ऐसा है, then integration. Multiplication में समझो, तो differentiation करना, अगर से वही डिनोमिनेटर में है ऐसा,
तो इंटीग्रेशन करना कितने बार यार, 2 टर्म्स है, 2 बार इंटीग्रेट करा, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया, इसमें सिंप्लीफाई करा। अब देख भाई ये तो टर्म तेरा रहेगा, वही क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख दे रहा हूँ समझ में आने के लिए। यार 1/, देख तेरा क्या होगा, n+1 n+2 तो हो जाएगा। यहाँ पे देख भाई 3 n+2 हो रहा, ओके, 3 n+2 और थोड़ा कैलकुलेशन 2n-5 हो जाएगा, ये तेरा आंसर है। इसका आंसर कितना है भाई, देख भाई ऐसा हो जाएगा। So right, guys, till here I introduced up to binomial coefficients. Now in the next class, I have to discuss totally. I have to discuss totally about rational index for 5 minutes, 10 minutes, and then afterwards one assignment, 30 questions, and then afterwards one question paper also I would like to upload. Okay, guys, thank you. Bye.